Assalamu alaikum everyone. I welcome you all to another session on hepatitis echo. I am Kiran Amir. I am the administrator of Parsa Echo Pakistan, and I will be the facilitator for today's session as well. Today's echo session is on case-based discussion, and Dr. Oj will be presenting our case. Our expert panel includes Dr. Bushra Ali. Dr. Bushra Ali is Echo Lead Punjab, Echo Clinical Consultant, Parsa Echo Pakistan, Assistant Professor, Gastroenterology, Hepatology, Fatma Memorial Hospital, Lahore. We have also with us Dr. Ikramul Haq Raja. Dr. Raja Ikramul Haq is Consultant Gastroenterologist, Fatma Memorial Hospital, Lahore. He will be presenting the right answers about the MCQs asked in the previous session, but after Dr. Bushra will, before Dr. Bushra will address the previous chat questions. In the middle of the session, Uzair will present a small poll. Please participate in it as it will help us design the new session. A few standard announcements just to remind you, we are part of a global movement of Project ECHO based in New Mexico, USA. Our objective is to disseminate best practices and knowledge. We do encourage participation, but by default, you are all muted. You can raise your hand, unmute yourself, and ask the question after the introduction, or you can use the chat box option. I should add here that we do protect patient privacy, so none of the material used in today's session will identify any individual or patient. For CME credits, please contact Mr. Uzair. So without further delay, I will hand over to you, to Dr. Bushra. I think Ikram is here also. Dr. Ikram, can you hear us? जी sir. Sorry, मैं थोड़ा ट्रैफिक में फंस गया. I am here. That's okay. जी तो इकराम, we can start as planned. आपने जो last हमारे MCQs थे, we want you to go through those MCQs and then answers with explanation. And we have Dr. Bushra and Dr. Zishan, both for help in any case. And I can see Dr. Nadeem Tehami name also. So you have experts from around the globe here. So G Ikram, please make a start. जी sir. हाँ जी, थैंक यू उज़ैर, आपने शेयर किया है इसको. अब थोड़ा सा अगर आप मैक्सिमाइज करेंगे इसका साइज प्लीज. Sir, can you see it now? Not exactly. अच्छा, मैं अपने इस इधर साथ में मतलब लैपटॉप पे देख लेता हूँ तो. हाँ जी ठीक है, थैंक यू. आप देख सकते हैं जी. अच्छा जी, हमारा जो पहला क्वेश्चन था वो ये था कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियोज इज क्लोज ऑब्जर्वेशन रादर देन एचबीवी ट्रीटमेंट इंडिकेटेड. तो इसमें सिनेरियो जो है वो उसमें मतलब बाकी जो है सारे वो ट्रीटमेंट इंडिकेटेड है, बट वन ऑफ दीज सिनेरियोज उसमें सिर्फ ऑब्जर्व करना है. तो उसमें जो पहला सिनेरियो है दैट इज अ 45-year-old HIV HBV patient with CD4 count of 500 cells per mm cube, HIV viral load undetectable, and HB viral load of 80,000 international. B option है जी, a 55-year-old man with compensated hepatitis B cirrhosis and hepatitis B viral load of 5,000. Option C था a 65-year-old woman with hepatitis B cirrhosis, decompensated by ascites and hepatic encephalopathy with hepatitis B viral load of 100 international units. Option D में था जी a 25-year-old intravenous drug user with new onset jaundice and labs of ALT of 2000, AST of 500, INR of 1, total bilirubin of 3,
or positive HBsAg hepatitis B viral load of that is 18 lakh, and hepatitis C virus antibody negative. और जो थोड़ा सा आप डाउन कीजिएगा प्लीज. उज़ैर इसको, हाँ जी. Dr. Ikram, we are on E option. Dr. Ikram, please unmute yourself. Oh, okay, sorry. हाँ जी, ऑप्शन ई में दोबारा पढ़ देता हूँ. 40-year-old man with non-chronic hepatitis B with HBsAg positive, HBe antigen positive, HBe antibody negative, or and viral load of 40,000 and stage 2 fibrosis on liver biopsy. अच्छा, अब इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन डी. उसकी वजह ये है कि ये जो सिनेरियो है इसमें रीसेंट ऑनसेट है जॉइंडस का, और जो पर्सन है दैट इज हैव इंट्रावेनस ड्रग यूज. तो इसमें जो चांसेस हैं वो ये हैं कि दिस इज एक्यूट हेपेटाइटिस बी. तो जब एक्यूट हेपेटाइटिस बी होता है तो उसमें हम आमतौर पे ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि उसमें जो चांसेस हैं वो ज़्यादातर ये हैं कि वो सेल्फ रिजॉल्विंग होता है. और जो बाकी सिनेरियोज हैं उसमें अगर हम देखें जो सारे मतलब ए अगर देखें तो उसमें को इन्फेक्शन है विद HIV. तो उसमें जब HIV की ट्रीटमेंट इंडिकेशन है तो उसके साथ डेफिनेटली हमने हेपेटाइटिस बी को भी ट्रीट करना है. बी में अगर हम देखें तो कॉम्पनसेटेड सिरोसिस है पेशेंट को. तो जब सिरोसिस डेवलप हो गई है हेपेटाइटिस बी की वजह से तो डेफिनेटली फिर इनडेफिनेट ट्रीटमेंट हमने हेपेटाइटिस बी का उसमें आमतौर पे इंडिकेटेड होता है. सी में जो है उसमें अगेन पेशेंट को सिरोसिस है और डीकॉम्पनसेटेड है. एंड देन जो ऑप्शन ई है अगेन उसमें क्रोनिक हेपेटाइटिस है और उसमें भी अगर आप देखें तो स्टेज 2 फाइब्रोसिस है ऑन लिवर बायोप्सी. तो उसमें भी हमारे पास ट्रीटमेंट इंडिकेशन है. तो जो ऑप्शन डी है उसमें चूंकि दैट सिनेरियो इज ऑफ एक्यूट हेपेटाइटिस बी, तो उसमें ट्रीटमेंट इंडिकेशन नहीं है, बल्कि उसमें हमने ऑब्जर्व करना है पेशेंट को, और उसमें यूजुअली पेशेंट जो है वो रिकवर कर जाता है. जी, इसमें अगर कोई फर्दर मैं कमेंट्स चाहूंगा फ्रॉम द एक्सपर्ट्स. जी, इकराम, I just want to engage Dr. Bushra and Zishan here. बुशरा, आप सिर्फ अगर हमारे ऑडियंस को ये बता दें, अभी ऑप्शन डी जो है इसमें एक्यूट हेपेटाइटिस बी की बात हो रही है, तो उसके लिए आप और कौन सा टेस्ट करेंगी जस्ट टू नो कि दिस इज एक्यूट हेपेटाइटिस बी. और जो इसी के साथ क्वेश्चन, जब इकराम कह रहे हैं कि इनको हमने ऑब्जर्व करना है, तो ऑब्जर्वेशन की क्या प्रोटोकॉल या गाइडलाइन आप सजेस्ट करेंगी, कितनी देर तक और कैसे फॉलो अप करेंगी? जी बुशरा प्लीज. Thank you, Dr. Asad. एक तो we have to keep in mind that this is a 25-year-old intravenous drug abuser, जिनको अब patients who inject drugs कहते हैं. इन patients का problem ये होता है कि they can have other causes of hepatitis along with this. So this patient, anti-hepatitis B core IgM for diagnosis of acute hepatitis B, and anti-hepatitis D virus will have to be done. Pakistan में total होता है, IgM होता नहीं है, but that should give an idea. So acute hepatitis B, acute hepatitis D on B, इन दोनों चीज़ों को rule out करने की ज़रूरत है, and HIV has to be kept in mind. Monitoring is usually done every week or so. There is no recommendation for monitoring.
But when the bilirubin comes down to less than 3, I increase the gap to every 2 weeks. Otherwise, I keep monitoring the patient's liver function tests and INR in any kind of acute hepatitis every week. But in this case, all of us know that a patient with acute hepatitis is labeled as chronic hepatitis after 6 months are over and the hepatitis B surface antigen persists and there is persistent virus. So once the bilirubin has gone down, the ALT has got settled, then we ask the patient to come back in 6 months and the patient's liver function tests, hepatitis B surface antigen and hepatitis B DNA should be checked. The persistence of viremia and hepatitis B surface antigen will label him as a case of chronic hepatitis B, and then he will be required to be managed and monitored according to the guidelines. Thank you, Dr. Bushra. I think we move to the next question and we'll engage Dr. Zishan there. Please go towards the next question, please. जी, थैंक यू जैक। तो यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट सिनेरियो है उसमें 33-year-old woman is pregnant with her first child. She has known hepatitis B infection and has never been on treatment. Her lab values are as follows: ALT of 30, AST of 25, ALP of 120, HBE antigen negative, HBE antibodies are positive, and HPV viral load of 20,000, 220 lakh international units. What is the appropriate regime and duration of therapy for her? तो इसमें जो हमारे पास options हैं उसमें है lamivudine, start 3rd trimester and stop 12 weeks postpartum. Option B में हमारे पास है entecavir, start in 3rd trimester and stop at delivery. Option C, tenofovir, start at 3rd trimester and stop at 12 weeks postpartum. D, adofovir plus lamivudine, start 3rd trimester and stop at 4 weeks postpartum. Peg interferon, start 2nd trimester and complete 48 weeks of treatment. तो इसमें जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन सी, tenofovir disoproxil, start at 3rd trimester and stop 12 weeks postpartum. इसमें अब जो हमारे पास इस आंसर का रैशनल है वो ये है कि सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि हमारे पास जो प्रेगनेंसी के दौरान पेशेंट है जिसको हेपेटाइटिस बी सरफेस मतलब इन्फेक्शन है, उसमें क्या दो चीजें हैं। एक तो क्या ट्रीटमेंट इंडिकेशन के जो पैरामीटर्स हैं हमारे पास वो पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, जिसमें वायरल लोड है, जिसमें हमारे पास LFTs हैं यानी कि ALT की लेवल है, तो उसमें हमने ये देखना है। अब इसमें ALT चूंकि नॉर्मल है, LFTs अदरवाइज नॉर्मल हैं और पेशेंट को कोई सिरोसिस का एलिमेंट भी नहीं है, तो इसमें ट्रीटमेंट इंडिकेशन नहीं है। अब जो दूसरी चीज इसमें आती है वो ये है कि आया जो प्रोफाइलैक्सिस देनी है हमने टू प्रिवेंट वर्टिकल ट्रांसमिशन, तो उसके लिए ये पेशेंट क्वालिफाई करता है बिकॉज वायरल लोड उसमें जो है दैट इज इम्पॉर्टेंट और उसमें वो उस लेवल से ऊपर है, द 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट जो है। तो उसके लिए फिर अब नेक्स्ट जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें अब देखना हमने ये है कि सेफ कौन सी मेडिसिन है जो कि प्रेगनेंसी में हम दे सकते हैं, और उसमें ऑप्शन जो है वो देखना है जो सेफ एंटीवायरल हो न्यूक्स में से, और जो ट्रीटमेंट ड्यूरेशन है तो उसमें जो ट्रीटमेंट ड्यूरेशन है दैट इज जो गाइडलाइंस कहती हैं वो ये है कि 3rd ट्राइमेस्टर में आप शुरू करें और आप 12 वीक्स पोस्टपार्टम तक उसको कंटिन्यू करें, दैट इज द बेस्ट ऑप्शन। तो उसमें अब ये ऑप्शन जो है वो A और C में है। तो अब जो लेटेस्ट इफेक्टिव ड्रग है जो सेफ भी है दैट इज tenofovir, और lamivudine तो अब हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस के तौर पे है हमारे पास, हम पढ़ते हैं बिकॉज इनिशियली तो वो यूज होती थी लेकिन बिकॉज ऑफ इट्स हाई चांसेस ऑफ रेजिस्टेंस तो वो ऑप्शन जो है वो उसको हम नहीं लेते। जी थैंक यू इकराम। Dr. Zishan, my question is
ये काफी हाई वायरल लोड है, 10⁻⁷ इंटरनेशनल यूनिट्स पर ml, और ई एंटीजन नेगेटिव पेशेंट है, यूजुअली हम कम ही देखते हैं। तो ऑफ कोर्स जिस तरह इकराम ने कहा कि सी इज द बेस्ट आंसर। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप इस पर भी थोड़ा सा एलैबोरेट करें और ये भी बताएं इस मरीज में आप ट्रीटमेंट कंटिन्यू करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे आफ्टर 12 वीक्स, और अगर आप इसको स्टॉप भी करते हैं तो आप इसकी मॉनिटरिंग कैसे करेंगे, ऑन ट्रीटमेंट भी और ऑफ ट्रीटमेंट। जी जीशान प्लीज। एक्सीलेंट केस अगेन। जो प्रेगनेंसी के अंदर है, जिस तरह से इकराम ने बात की कि द फर्स्ट थिंग वी हैव टू क्वेश्चन वी हैव टू आंसर इज कि वेदर और नॉट ये पेशेंट अदरवाइज ट्रीटमेंट क्वालिफाई करता है नहीं करता। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे ये डिसाइड होगा कि कब ट्रीटमेंट शुरू करनी है और कब ट्रीटमेंट खत्म करनी है, जो बात आ रही थी। क्योंकि ये पेशेंट कोई फाइब्रोसिस स्कोर नहीं आ रहा है, अगर इसका एप्री कैलकुलेट करेंगे लेस देन 1 आएगा, फिर 4 का कम आना है। तो ऐसी सूरत में जब इसकी कोई फाइब्रोसिस नहीं है, ALT इसका नॉर्मल है, तो ये क्रॉनिक इन्फेक्शन में क्लासिफाई होता है, ये हेपेटाइटिस में, क्रॉनिक हेपेटाइटिस में क्लासिफाई नहीं होता। तो इफ शी इज नॉट प्रेग्नेंट देयर इज नो इंडिकेशन ऑफ ट्रीटमेंट, शी वुड बी ऑब्जर्व। वो 3 मंथली ALT करते हैं आप, ईयरली या 6 मंथली जो है इसका जो फाइब्रोसिस के लिए, और PCR करते हैं, जो कि रूटीन फॉलोअप होता है, उसी तरह से होता है। बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर इज द वायरल लोड, कि जब वायरल लोड ज्यादा है तो वर्टिकल ट्रांसमिशन होगी। उस वर्टिकल ट्रांसमिशन को प्रिवेंट करने के लिए प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट आप दे रहे हैं। तो प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट जब आप देते हैं तो एक सर्टेन ड्यूरेशन के लिए है, वो जो रिस्क है उस ड्यूरेशन के लिए है। जो 12 वीक्स भी कंटिन्यू करते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि फर्स्ट 12 वीक्स में उसको वैक्सीनेशन हो रही होती है बच्चे को बी की, उसको हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन लगाते हैं और वैक्सीनेशन लगाते हैं। तो वो फेज जब उसकी इम्यूनिटी डेवलप हो उस फेज तक आपने कवर करना होता है 12 हफ्ते। तो लास्ट ट्राइमेस्टर में और जो है 12 हफ्ते ड्यूरिंग द लैक्टेशन, क्योंकि लैक्टेशन हम प्रमोट करते हैं, हम डिस्करेज नहीं करते। हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन पॉजिटिव मदर्स प्रिवेंशन के लिए देने की जरूरत है। तो ऑप्शंस ट्रीटमेंट के हमारे पास जो दिए हैं, तो हम देखते हैं कि प्रेगनेंसी उसमें जो है वो एंटाकेविर जो है वो कैटेगरी सी में आती है, एडिफोविर एक्स में आता है, नेवर बीन गिवन, कॉन्ट्राइंडिकेटेड स्ट्रांगली, ठीक है ना। तो ये दवाएं तो आउट हो जाती हैं। लेमेबेडिन का कुछ एक्सपीरियंस शुरू में था, बट स्टिल इट इज क्लासिफाइड एज कैटेगरी 3 ड्रग। लेमेबेडिन को अर्ली हम यूज करते थे, लेकिन क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस जो है वो बहुत जल्दी डेवलप होती है, तो वी डोंट यूज इट नाउ डेज इन एनी केस जो है लेमेबेडिन को। टेल्बेबेडिन अगेन वाज द ऑप्शन जो कैटेगरी बी थी, और टेनोफाविर जो है डाइसोप्रोक्सिल जो है दैट इज कैटेगरी बी ड्रग। लेकिन टेल्बेबेडिन भी जो है बिकॉज ऑफ द लो जेनेटिक बैरियर टू द रेजिस्टेंस इट इज नॉट बीन गिवन। तो हमारे पास इस वक्त अवेलेबल जो दवाएं हैं उसमें सिर्फ टेनोफाविर डाइसोप्रोक्सिल इज द ओनली ऑप्शन व्हिच कैन बी गिवन सेफली इन प्रेगनेंसी, और इसको हम 12 हफ्ते पे बंद करते हैं। एक जनरल रूल है, जब भी कब ट्रीटमेंट स्टॉप करेंगे देयर इज अ रिस्क ऑफ फ्लेयर। At times this flare ends up with eradication of the control of the infection, और हो सकता है it may lead to aggravated liver damage। उसको देखने के लिए, उस फ्लेयर को मॉनिटर करने के लिए जब आप दवा बंद करते हैं तो बड़ा फ्रीक्वेंटली आपने ALT को मॉनिटर करना है इस केस में कि ALT बहुत ज्यादा बढ़ तो नहीं रहा, और अगर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और परसिस्टेंटली बढ़ रहा है उसके अंदर, तो देन यू हैव टू लुक इनटू कि लिवर डैमेज हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसमें एंटी सरफेस एंटीजन पॉजिटिव होने के चांसेस भी काफी ज्यादा होते हैं जब आप दवा बंद करके ये फ्लेयर आता है। तो देयर आर गुड फ्लेयर्स एंड देयर मे बी नास्टी ऑफ द बैड फ्लेयर्स। तो उसको नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स जो है हमने ALT फ्रीक्वेंटली मॉनिटर करके एंड हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन जो है क्वांटिटेटिव एनालिसिस और एंटी HBS ये हमने इसमें मॉनिटर करना है, क्योंकि E एंटीजन ऑलरेडी ये नेगेटिव है, तो वी आर नॉट गोइंग टू फॉलो फॉर द जीरो ऑफ E एंटीजन। Thank you. Thank you very Yes, much. We move on to the next question, please. Uzair, up next question.
जी इकराम, प्लीज गो अहेड। जी थैंक यू ज़ैर। Question 3 है जी, a 25-year-old man who was recently diagnosed with large B-cell lymphoma needs rituximab-based chemotherapy. Lab values reveal the following: surface antigen positive, anti-HBC positive, anti-HBS negative. You start treatment with tenofovir 2 weeks prior to initiation of chemotherapy to prevent HPV reactivation. How long do you continue the tenofovir? Option A, indefinitely. He needs lifelong treatment. Option B, discontinue 1 month after chemotherapy ends. Option C, discontinue 3 months after chemotherapy ends. D, discontinue 12 to 18 months after chemotherapy ends. And option E, discontinue same time as last day of chemotherapy. तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है विद दिस सिनेरियो कि जिसमें हमने रिटुक्सीमैब ट्रीटमेंट देनी है, तो उसके लिए करेक्ट ऑप्शन जो है हमारे पास दैट इज डी, डिसकंटिन्यू 12 to 18 months आफ्टर कीमोथेरेपी एंड्स। बिकॉज इसमें जो हमारे पास एविडेंस बेस्ड मतलब डाटा है उसमें रिएक्टिव को इम्यूनोसप्रेशन स्टार्ट की जाती है। उसमें फिर डिफरेंट मतलब कैटेगरीज हैं जिसमें स्टेरॉइड थेरेपी है विद डिफरेंट डोजेस, और जो सबसे ज्यादा चांसेस हैं वो बेसिकली जो रिटुक्सीमैब बेस्ड थेरेपीज हैं उसके साथ चांसेस बहुत ज्यादा हैं एक्टिवेट होने के, और इसलिए और उसका जो इफेक्ट है वो इवन उसके कीमोथेरेपी स्टॉप करने के बाद तक रहता है। तो उसके लिए जो रिकमेंडेशंस हैं उसमें जो यूरोपियन और उसमें यूरोपियन गाइडलाइंस जो 2018 की हैं वो तो कहती हैं 18 मंथ्स, अमेरिकन जो है वो तकरीबन 12 मंथ्स तक। तो इसलिए जो ऑप्शन था वो 12 to 18 मंथ्स तक उसको कंटिन्यू करना जरूरी है। और बाकी जो है ऑप्शन उसमें से जो पहला है उस पर थोड़ा सा कमेंट ये है कि अगर तो पेशेंट को अदरवाइज इंडिकेशन है तो डेफिनेटली हम HBE एंटीजन वाले पेशेंट्स में लॉन्ग टर्म चला सकते हैं मेडिसिन। अदरवाइज इन दिस केस we should discontinue the treatment after 12 to 18 months of chemotherapy ends. जी थैंक यू। डॉक्टर जीशान, ये भी आपने कवर किया था अपनी टॉक में, इफ यू हैव एनीथिंग टू ऐड हियर। Is Dr. Zishan with us? Dr. Zishan, we can't hear you. Okay, I think this is अभी आपको आवाज आ रही है? जी अब आ रही है। जी जीशान प्लीज। जी अच्छा जी, टॉक में हमने इस पे बात की थी कि जो रिटक्सीमेब बेस्ड थेरेपीज हैं और हेमेटोलॉजिकल मैलिग्नेंसीज हैं, इसमें ये दोनों चीजें मौजूद हैं पेशेंट में। ये बहुत हाई रिस्क ऑफ फ्लेयर होता है और इसके अंदर 12 से 18 महीने हमें देना पड़ता है, प्रोवाइडेड द प्राइमरी डिजीज इज वेल कंट्रोल्ड। अगर प्राइमरी डिजीज रिमिशन में नहीं है तो जब तक के प्राइमरी डिजीज रिमिशन में नहीं आ जाती उस वक्त तक और वो भी रिमिशन में 12 महीने तक हो, तो उसके बाद यू प्लान टू टेपर ऑफ और यू प्लान टू स्टॉप द एंटी-HBV थेरेपी। और इस दौरान भी आपने क्वांटिटेटिव सरफेस एंटीजन, HBV DNA और इसका ALT मॉनिटर करना होता है ऑन ट्रीटमेंट फ्लेयर के ऊपर, इवन विद ऑन ट्रीटमेंट ऑफ अगर बी की ट्रीटमेंट के ऊपर है तो, क्योंकि ये हाई इम्यूनोसप्रेशन कराते हैं उसमें मैक्सिमम रिस्क ऑफ फ्लेयर होता है। तो वी हैव टू गिव 18 months after stopping the therapy when the disease is in remission. थैंक यू जीशान। मैं थोड़ा सा फॉर आवर कोलीग्स जो जनरल प्रैक्टिस में है, रिटुक्सीमैब तो खैर ये लोग इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन इसी सिनारियो में लेट्स से देयर इज अ पेशेंट विद आर्थराइटिस या एस्थमा का पेशेंट है। यूजुअली आर्थराइटिस के लोग आते हैं जनरल प्रैक्टिस में जिनको आपने 15 मिलीग्राम या 20 मिलीग्राम लेट्स से प्रेडनिसोलोन शुरू करनी है, और इसी सिनारियो में एस सरफेस एंटीजन पॉजिटिव, कोर antibody positive, anti-HBs negative and LFTs are normal, उसमें आप क्या एडवाइस करते हैं? ये ट्रीटमेंट होना चाहिए टेनोफोविर के साथ या उनको उसको मॉनिटर करना चाहिए?
स्टेरॉइड ट्रीटमेंट जो है ना, उसके ऊपर अभी तक कोई डेटा नहीं है कि अगर सिर्फ स्टेरॉइड के ऊपर और लो डोज स्टेरॉइड ये 15-20 मिलीग्राम के ऊपर, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज नॉट एक्चुअली द ड्रग ऑफ चॉइस एज वेल। डेटा इसलिए नहीं है कि फॉर एग्जांपल इफ आई से कि द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम रूमेटॉइड आर्थराइटिस, द ड्रग ऑफ चॉइस विल बी methotrexate और leflunomide। इन दीज केसेस यस इट इज कि इम्यूनोसप्रेसिव आप दे रहे हैं तो ये प्रॉपर प्रोफिलैक्सिस की इंडिकेशन बनती है। स्टेरॉइड अगर 15-20 मिलीग्राम ले रहे हैं, देयर इज नो डेटा। प्रीएम्प्टिव थेरेपी के लिए आप उसको मॉनिटर कर सकते हैं कि जैसे ही पेशेंट की क्वांटिटेटिव सरफेस एंटीजन ज्यादा हो, एएलटी बढ़े, इन दैट केस यू मे ऐड ऑन प्रीएम्प्टिव ट्रीटमेंट की जो हमने बात की थी कि जो लो रिस्क वाले पेशेंट होते हैं जिनमें फ्लेयर अगर स्टेरॉइड ओनली के ऊपर है। लेकिन अगर तो methotrexate या जो आपका क्या कहते हैं इम्यूरान वगैरह इस तरह की थेरेपी पे है, साइक्लोस्पोरिन पे या मैकोफिनोलेट ऐड ऑन करने का प्लान है या शुरू कर सकते हैं, करने की जरूरत पड़ सकती है, तो दे शुड बी ऑन द प्रोफिलैक्टिक थेरेपी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। वी मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। जी तो लास्ट क्वेश्चन था हमारा अबाउट एक्स्ट्रा हेपेटिक मैनिफेस्टेशंस ऑफ हेपेटाइटिस बी। तो ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एक्स्ट्रा हेपेटिक मैनिफेस्टेशंस ऑफ हेपेटाइटिस बी एक्सेप्ट। तो इसमें ऑप्शन जो है ए इज आर्थराइटिस, बी इज ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, सी इज जाइंट सेल आर्थराइटिस, डी इज पॉलीआर्थराइटिस नोडोजा और ई इज क्रायोग्लोबुलिनीमिया। तो इसमें जो ऑप्शंस हैं उसमें जो इस क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन है दैट इज सी, giant cell arthritis that is not related to hepatitis B. Otherwise बाकी जो इसमें है arthritis, glomerulonephritis, polyarthritis nodosa और cryoglobulinemia, they are well established link with hepatitis B infection. और इसमें sometimes जो है this is very important कि जिस तरह के ये conditions होती हैं उसमें जो फिजिशियन है वो मतलब बाकी जो सस्पिशन है इटियोलॉजी के हिसाब से, तो अगर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है या पेशेंट जो इस तरह के वेस्कुलर या बाकी वेस्कुलाइटिस पिक्चर के साथ आते हैं और या क्रायोग्लोबुलिनीमिया है खास तौर पे, तो उसमें जो है वो और समटाइम जो आर्थराइटिस है पॉलीआर्थराइटिस, तो उसमें जो है सस्पिशन इसका होना चाहिए साथ में। और उसके लिए फिर ये है कि जो ट्रीटमेंट है, फिर अगर प्राइमरी डिजीज की ट्रीटमेंट होती है तो डेफिनेटली उसके लिए वो फिर जो बाकी सिम्टम्स हैं वो रिजॉल्व हो जाती है। जी थैंक यू उजैर, इफ यू कैन स्टॉप शेयर। डॉक्टर बुशरा, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अभी चैट में भी आया है कि जो क्रायोग्लोबुलिनीमिया है, isn't it more associated with hepatitis C rather than hepatitis B? आप कोई कमेंट देंगे इसमें? That is correct. Hepatitis C के साथ ज़्यादा commonly हम इनको encounter करते हैं, vasculitic lesions होती हैं, and that is one indication for urgent treatment. But cryoglobulinemia is not absent in hepatitis B. And जैसे अभी डॉक्टर इकराम ने भी कहा है, if cryoglobulinemia is found, you have to rule out hepatitis B and C. तीसरी चीज ये है कि this then falls out of the conventional criteria for treatment of hepatitis B. Extrahepatic manifestations are themselves a indication for treatment of Hep B. Thank you. Kiran, what is next? Before I think Uzair can start the poll and then Dr. Och can take over. All right, I'm starting the poll. Only the participants can poll. A host and co-host can't poll. So here we go. I think आपके सामने क्वेश्चन आएगा. I would encourage कि आप इसको आंसर करें and we can see कि आप. The question is, which time slot suits you best for hepatitis echo Zoom call? So 9 to 10 a.m. morning, 2 to 3 p.m. and 10 to 11 p.m.
I think we can end the poll. We have got only 10 responses by now. Thank you. We have 10 responses and 60% are of the opinion that the current time is the most suitable one. So, I think we are already following this response anyhow, and 2 to 3 p.m. is, there's only one response on that. Thank you, Zed. If you can end the poll, Zed. Sir, I have ended the poll. Okay. I think we move on to the case discussion. Dr. Raj, can you see the screen? जी Uzair bhai, can see the screen. उज़ैर इसको थोड़ा सा इसके फॉन्ट्स बड़े कर दें, इसको मैग्नीफाई कर दें थोड़ा सा. नहीं, आप इसको वहां से कर देना. हाँ, यस, चलो जी. डॉक्टर राज, प्लीज गो अहेड. Ji sir. So the case is a 50-year-old male, known diabetic, non-smoker, non-alcoholic, HCV positive since 2005. He was treated with interferon ribavirin. Record was not available. And in May 2020, direct antiviral treatment was for 3 months, and his end treatment response was positive. In January 2021, presented with epistaxis off and on since 4 to 5 months, no history of melena or hematemesis. Current treatment was gliclazide 30 mg and sitagliptin metformin 50 by 1000 mg. On examination, abdomen is soft, non-tender, and chest bilaterally clear. Family history was not significant. His lab investigations, as you can see, are HB 11.7, TLC 3.8, platelet 76, bilirubin more or less. Bilirubin was 1.1 and ALT 83, AST 121, and alkaline phosphatase 158. Albumin was 3.4 and sugar 121. And HCV RNA by PCR quantitative was detected and was in 22,000 international units. And anti-HCV and HBS antigen was not available. These were his labs when he was going to start his antiviral treatment. And the next one you can see at the date of June 2020, where after he completed his treatment, HB was 9.4 and TLC 4, platelets 92, and LFTs were better than the previous ones, but bilirubin was 1.6, ALT 29, and AST 26. Alkaline phosphatase 136. And albumin 3.6. His HCV RNA by PCR in July was not detected, and it showed the end treatment response. And the October 2020 lab were more or less the same as previous ones. Ultrasound abdomen showed liver span is 14.5 centimeter, coarse echo texture, no ascites or SOL noted in liver. Splenomegaly 14.7 into 4.8 centimeter, and splenic hilum vessels were engorged. The questions are, how should we manage his epistaxis? And is metformin safe in cirrhotic patients? And what further tests this patient needs? Thank you. Thank you, Dr. Raj. So let me summarize. We have a 50-year-old male, diabetic, and in 2005, he did not respond to interferon ribavirin treatment, and then he was put on directly acting antiviral treatment. We don't have the record which drugs were given, and ETI was positive. So he now presents with epistaxis, and current treatment is gliclazide and sitagliptin metformin. Labs are okay. He has had anemia, but in October 2020, hemoglobin is okay. He has thrombocytopenia and albumin a bit lowish.
and alpha-fetoprotein is normal. Ultrasound is unremarkable apart from splenomegaly. And this does mention engorgement of splenic hilar vessels. So Bushra, the first question is because in our OPD, we quite often receive these cases. तो हम इसकी epistaxis को कैसे treat करेंगे? With latest platelets are 93,000. We don't have INR here, but anyhow, आपकी practice में आप epistaxis में क्या guide करते हैं इन लोगों को? जी बुशरा. First, we need to get his INR done. और दूसरा ये है कि epistaxis in a cirrhotic patient में पहले तो ज़रूरी यही है कि local cause evaluate किया जाए. तो ENT referral and examination for a local cause of bleeding. दूसरी चीज़ ये है कि उसके साथ ही होता है कि हम रिक्वेस्ट आप करते हैं पेशेंट्स को कि वो नाखून छोटे रखें, नाक में उंगली बहुत नहीं मारनी है, जोर से नाक ब्लो नहीं करना, और SOS बेसिस पे जो ज़ाइलोमेटाज़ोलिन ड्रॉप्स होते हैं दैट एक्ट्स एज अ नेजल डीकंजेस्टेंट, वो इस्तेमाल किया जाता है, बट इन वेरी लो डोजेस बिकॉज इट कैन कॉज रिफ्रैक्टरी टैकीकार्डिया, और वो बस मॉडरेट डोजेस में ही यूज़ किया जा सकता है. But usually it is a local cause, especially since the platelet count is 76 and the rest of the synthetic function of the liver is not bad looking at the albumin. So presumably the INR is also normal. तो इसलिए local cause पहले देखना पड़ेगा, फिर उसके बाद जो मैंने आपको बताई हैं precautions वो किए जा सकती हैं. जी वो डॉक्टर सिकंदर ने पोस्ट किया है कि ब्लड प्रेशर मॉनिटर करें. डेफिनेटली सो, ब्लड प्रेशर देखना चाहिए इन अ पेशेंट हु हैज एपिस्टैक्सिस, और उसको फिजिशियन से ट्रीट कर सकते हैं उसको. थैंक यू बुशरा. और एक और क्वेश्चन चैट में आया था अबाउट ETR. हम लोग जनरली ETR चेक नहीं करते. वी ट्रीट द पेशेंट अप्रोप्रिएटली, फॉलो अप के बाद यूजुअली वी check SVR only. Zishan, there was this concern about metformin in the setting of liver cirrhosis. आपका क्या एक्सपीरियंस है और आप इसको कितना सेफ या अनसेफ समझते हैं in the context of liver cirrhosis? जी Zishan. We cannot hear you, Zishan. Dr. Zishan, are you with us? You are muted. Zishan, please. I think Dr. Zishan, I think I have got a voice problem. Can you hear me? Because I can't hear anything. Okay, Dr. Bushra, आप कुछ metformin in the context of cirrhosis कुछ आप कमेंट देना चाहेंगी? जी, theoretically metformin predisposes patients with cirrhosis towards lactic acidosis. So yes, it is discouraged to be used, लेकिन ये absolute contraindication नहीं है. अगर ये patient पहले से metformin ले रहा है और इसका glycemic control अच्छा है, on metformin इधर hemoglobin A1C level नहीं है, नीचे तो नहीं है उज़ैर, नीचे तो नहीं लेवल दी हुई हीमोग्लोबिन A1C की उज़ैर सर? अच्छा, I'm back. Asad, probably मैं बीच में I couldn't get the sound. What was the question? No, Dr. Bushra, HbA1c was not done. His HbA1c was not done. तो वही
ठीक है, सो हीमोग्लोबिन A1C अगर टारगेट अचीव हो रहा है और मेटफॉर्मिन पे ग्लाइसीमिक कंट्रोल अच्छा है, तो मैं बंद नहीं करूंगी मेटफॉर्मिन, लेकिन स्टार्ट करने से थोड़ा सा डिस्करेज ही करते हैं। सेकेंडली, हमें ये याद रखना है कि ये एक पेशेंट है जो कि डायबिटिक है, सिरोसिस है, लेकिन हेपेटाइटिस सी पोटेंशियली क्योर हो चुका हुआ है, सस्टेन वायरोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रिजूमेबली अचीव हुआ है, लेकिन ऐसे पेशेंट्स को हमने फैटी लिवर डिजीज से भी तो बचाना है ना। तो इसलिए ऐसे पेशेंट को बताना है कि आपको एक डिजीज तो ख़त्म हो गई है लिवर की, तो आपको दूसरी डिजीज अवॉइड करनी है, सो दैट यू डू नॉट एंड अप वेयर यू स्टार्टेड ऑफ फ्रॉम। तो उसमें भी फिर ग्लाइसीमिक कंट्रोल ज़रूरी हो जाता है। सो थेरेटिकल रिस्क इज़ देयर, लेकिन एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। वैसे भी इस पेशेंट का सिरोसिस कॉम्पनसेटेड है। If Dr. Zishan can answer the question because he's back online. I'm sorry, मेरा इंटरनेट प्रॉब्लम कर रहा है। अच्छा, ये पेशेंट क्योंकि हैप सी तो वी हैव सीन कि ट्रीट तो हो चुका है, बट cirrhosis remains there and we will be monitoring him for HCC in long term. As far as epistaxis and diabetes management is concerned, epistaxis local cause हो सकती है, unlikely to be with 90,000 platelet. I would like to see the INR as well. People may question कि INR की validity for the bleeding tendency in cirrhosis कितनी है, लेकिन इसका ताल्लुक शायद सिरोसिस से नहीं होगा, लोकल कॉज वेरी लाइकली होगा। और जैसे कि बुशरा ने बात की थी कि ENT ओपिनियन एंड लोकल रेमेडीज जो है ना, दे मे बी मोर यूजफुल rather than looking into the cause of the cirrhosis as a culprit. डायबिटीज मैनेजमेंट, क्योंकि ये पेशेंट डायबिटिक है और HCV इंड्यूस्ड सिरोसिस भी है इसमें, गो के C को आप ट्रीट कर चुके। डायबिटिक्स में नैश और फैटी लिवर बहुत ज़्यादा होता है, डायबिटिक पेशेंट बहुत तेज़ी से फाइब्रोसिस हो जाते हैं, इसको ऑलरेडी एक रिस्क फैक्टर है, तो इसकी डायबिटीज़ मेटिकुलसली ट्रीट करना इंपॉर्टेंट है। इंडिकेशन ऑफ मेटफॉर्मिन, बुशरा ने जो बात की कि यू डोंट स्टार्ट विद मेटफॉर्मिन इन सिरोटिक पेशेंट्स, यस दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू। एक पेशेंट अगर वेल कंट्रोल है और ये कंपनसेटेड सिरोसिस है, तो यू मे कंटिन्यू फॉर सम टाइम अनलेस द पेशेंट हैव गॉट रिस्क ऑफ हाइपोक्सीमिया या पेशेंट इज एनेमिक। तो उस कंडीशन में लैक्टिक एसिडोसिस का रिस्क बढ़ जाता है, तो उसमें हम नहीं करते। तो अगर एनीमिया वर्ज हो रहा है इसका, तो वी विल स्टॉप इट। डिकम्पनसेट कर रहा है पेशेंट, वी मस्ट स्टॉप इट, ठीक है। लेकिन अदरवाइज अगर इसका शुगर कंट्रोल ठीक है और इसकी जो है ये सिरोसिस वेल कंट्रोल्ड है, वेल कंपनसेटेड है, तो वी कैन कंटिन्यू, बट दैट रिमेन्स द डिबेट कि इंसुलिन ज़्यादा हेल्पफुल होगी नहीं। बट अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट हेयर इज द डायबिटीज़ कंट्रोल, कि वो अचीव करें ताकि जो फैटी लिवर है और उसकी वजह से जो प्रोग्रेशन ऑफ द सिरोसिस है वो प्रिवेंट हो सके। थैंक यू ज़िशान। बुशरा, ये क्वेश्चन चैट में है कि इफ यू मैनेज सक्सेसफुली एपिस्टैक्सिस दिस टाइम बट द प्लेटलेट्स रिमेन द सेम, जो कि हमारे पास लास्ट काउंट 93,000 थी, हाउ विल यू मैनेज रिकरेंट एपिस्टैक्सिस इफ देयर इज नो लोकल कॉज? आप म्यूटेड है बुशरा। Recurrent epistaxis is unlikely to be there without a local cause. Unless जो पेशेंट है वो बात नहीं मान रहे हैं और वो रिपीटेड ट्रॉमा कर रहे हैं और ब्लड प्रेशर भी उनका पुअरली कंट्रोल्ड है, तो उन चीज़ों को रूल आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो प्लेटलेट्स हैं वो इतने कम नहीं है कि हम प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन एडवाइस कर दें। This platelet count is acceptable in a patient who has cirrhosis with splenomegaly. तो जो recurrent epistaxis है उसकी यही treatment रहेगी. No role of transamine here. It will only predispose the patient towards thrombosis, and no role of platelet transfusions or vitamin K. Vitamin K देने का इसलिए भी फायदा नहीं होगा क्योंकि patient cirrhotic है तो synthetic function impaired होते हैं इनके patients के. इसलिए ENT is the answer. They have a whole list of stepwise management of epistaxis, including ligation of the bleeding vessels. तो इसलिए वही answer है. The answer lies with the ENT. Thank you. Dr. Ikram, are you with us? जी सर। जी, अब आपने ये बताना है कि इस पेशेंट में would you like to do any further test?
अच्छा, इसमें जो एग्जैक्टली जो एक हमारे पास प्रॉब्लम है वो तो है एपिस्टैक्सिस का। उसमें डेफिनेटली जो यहाँ पे मिसिंग है वो INR है और APTT है, जो कि मतलब उसको भी हम देख लेंगे। और इसके बाद ये है कि पेशेंट का ऑल्दो के हम वायरस को इरेडिकेट कर चुके हैं, तो लेकिन चूंकि सिरोसिस का एलिमेंट ऑलरेडी है, प्लेटलेट्स परसिस्टेंटली डाउन है, HB ऑल्दो के इस वक्त हमें जो लेटेस्ट है वो अच्छी नजर आ रही है, बट अल्ट्रासाउंड पे जैसे कि है जो थोड़ी सी वेरिसेस का है, तो इस पेशेंट में हम एक असेसमेंट करेंगे, मतलब कि इस वक्त एग्जैक्टली कहाँ पे पेशेंट फॉल कर रहा है। उस पर सबसे अच्छी चीज हमारे पास जो है दैट इज फाइब्रोस्कैन। इफ इट इज अवेलेबल वी शुड डू इट, बिकॉज उसमें हमें ये भी गाइड मिलता है एग्जैक्टली कि उस पर कितनी फाइब्रोसिस है, स्टिफनेस है। तो हम जो अब लेटेस्ट गाइड उससे भी ले सकते हैं कि अगर वो 20 किलो पास्कल से ज्यादा है तो उसमें हायर चांसेस ये हैं कि पेशेंट को वेरिसेस डेवलप हो चुकी हैं। तो इन दिस केस अगर तो हमारे पास फाइब्रोस्कैन हो जाना चाहिए, उसके बाद अगर उसमें फाइब्रोसिस सिग्निफिकेंटली आ रही है जो कि लाइकली है, तो फिर हम एक एंडोस्कोपी प्लान करते हैं फॉर द स्क्रीनिंग ऑफ वेरिसेस। सेकेंडली ये है कि इसमें हम हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन पेशेंट का ऑलरेडी नेगेटिव है, नहीं सॉरी, इस पे NA दिया हुआ है, उसको हम करवा सकते हैं। अगर वो नेगेटिव है देन वी विल प्लान फॉर हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन हियर। एंड देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि हमने पेशेंट को एक दफा रिस्क फैक्टर्स को देखना है कि उसमें अगर हमें कोई ऐसी चीज मिलती है कि जिसमें हमें मतलब पेशेंट का अगर बिहेवियर ऐसा है तो उसमें दोबारा एक दफा मतलब PCR अगर तो हाई रिस्क उसमें आता है तो एनुअली करने की जरूरत पड़ेगी। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज सर्वेलेंस फॉर HCC by doing alpha fetoprotein and ultrasound abdomen every 6 months. थैंक यू थैंक यू। मैं सिर्फ ये ऐड करूंगा कि इसका SVR चेक नहीं हुआ हुआ, तो वी नीड टू डू अ PCR. Endoscopy is recommended here, and HCC surveillance. Hepatitis B vaccine remains important if the patient has not already been vaccinated. So ये बड़ी common चीजें हैं that you need to keep this in mind, और SVR document करना भी important है इस scenario में. Uzair, if you can stop share and we can take some question. There was a question in the chat which Zishan has answered. Role of metformin in NAFLD. So there is no role of metformin, and inshallah jo NAFLD hai we are gonna cover soon. So if there is another burning question, aapke paas raise hand option hai. We have Bushra and Zishan here with us, so you can ask your question. We still have about 5-6 minutes. Sir, we have a few questions from the previous session जो chat में पूछे गए थे, उसमें कोई अगर रह गया है तो वो हम डिस्कस कर सकते हैं। जी, I'm coming to that. इसमें कुछ questions तो okay. One question is there any role of FibroScan as the patient is cirrhotic and low platelets? Splenomegaly and coarse liver. Dr. Bushra, इस पे आप कमेंट करना चाहेंगी? This patient, we know this patient is cirrhotic. He has low platelets. His spleen is enlarged, and there is a coarse liver on ultrasound. So, should we really go for a FibroScan here? I'm muted and. The role of FibroScan is in the diagnosis of fibrosis. इस पेशेंट की तो हमें अदर रेडियोलॉजिकल एविडेंस मिल रहा है, और अगर बाकी नॉन इन्वेसिव जो स्कोर्स हैं हमारे एप्री है या FIB-4 है वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और साथ में अल्ट्रासाउंड पे सिरोसिस है, स्प्लीन एनलार्ज्ड है, प्लेटलेट काउंट कम है, तो इसलिए कोई इस चीज़ में हम there is no controversy about whether or not he has fibrosis or cirrhosis. So no, a FibroScan will not be required here. अच्छा, यहाँ पे let me add on, असद,
कि फाइब्रोस्कैन की जो इंडिकेशन इकराम ने जिक्र किया है ना, इट इज नॉट टू डायग्नोज सिरोसिस. सिरोसिस एस्टेब्लिश है, जैसे कि बुशरा ने बात की, इट्स ऑलरेडी क्लियर कि स्प्लेनोमेगाली है, वेरिसेस नजर आ रहे हैं, अल्ट्रासाउंड के ऊपर प्लेटलेट लो हैं. सो क्वाइट अबंडेंट इंफॉर्मेशन क्लिनिकली कि ये पेशेंट सिरोटिक है. सो हमें सिरोसिस को जो है ना इस्टेब्लिश करने के लिए फाइब्रोस्कैन की जरूरत नहीं है इस केस में. What Ikram was talking about कि फाइब्रोस्कैन की इंडिकेशन, दैट इज ए डिफरेंट इंडिकेशन कि जिसमें हम वायरसल स्क्रीनिंग के अंदर जो है स्ट्रेटिफाई कर लें हाई रिस्क ऑफ वायरसेस वाले पेशेंट्स में कि किस, और जहां आपके पास लिमिटेड लिस्ट है करने के लिए, जहां पे लिमिटेड फैसिलिटी है एंडोस्कोपी की कि हर मरीज में वो आप एंडोस्कोपी के लिए नहीं रेफर कर सकते हैं, कम पेशेंट्स में एंडोस्कोपी के आपके पास है, तो वहां इसका एक और रोल जो फाइब्रोस्कैन अगर अवेलेबल है, तो जो 20 kPa का जिक्र किया कि if the scores are less than 20 kPa, then it's very unlikely that this patient will end up with जो है ना esophageal varices on endoscopy. तो वो esophageal varices की स्क्रीनिंग के लिए जिसमें के 20 के स्कोर को लेते हैं, दो इट रिमेन्स एक डिबेट, अभी तक बहुत स्टैब्लिश नहीं है, लेकिन कुछ गाइडलाइंस में इसके ऊपर बात हुई है कि 20 kPa से ऊपर है तो आप जो है उसकी प्रोफिलेक्सिस विदाउट एंडोस्कोपी दे सकते हैं अगर पेशेंट को हिस्ट्री ब्लीड की नहीं है, और अगर ब्लीड है तो इन एनी केस एंडोस्कोपी करनी ही करनी है, वो तो सेकेंडरी प्रोफिलेक्सिस आ जाती है. Thank you. There were a few questions in the chat last time. एक तो क्वेश्चन था how to differentiate between E antigen positive and E antigen negative patient. तो of course आप ये रूटीन में टेस्ट करते हैं हेपेटाइटिस बी ई एंटीजन एंड एंटीबॉडी अगेंस्ट ई एंटीजन. ज़ीशान, ये जो एक क्वेश्चन है कि इन योर क्लिनिकल प्रैक्टिस how many of the patients you see with surface antigen seroconversion, जिसका मतलब I'll just clarify to my colleagues कि surface antigen negative हो जाए and anti HBs positive हो जाए. तो आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस में ज़ीशान आप कितना देखते हैं? ये मेरा ख्याल है हमने लास्ट टाइम पे आंसर कर दिया था कि आई हैवंट सीन, प्रॉब्ली मेरा ख्याल है 10-12 साल की प्रैक्टिस में जो हेपेटोलॉजी स्पेसिफिक है, एक आध दो पेशेंट्स हार्डली देखे होंगे इन थाउजेंड्स ऑफ दोस. सो वेरी रेयरली यू सी, एंड दैट्स वेयर वी टॉक अबाउट के जो न्यूक्स हैं इनको हमें शायद इंडेफिनेटली देना पड़ेगा इन पेशेंट्स में, क्योंकि HBs सीरो कन्वर्जन जो है वो बहुत रेयर है, बहुत रेयर है, एंड आई हैवंट सीन टू मेनी, मैं एक या दो देखे होंगे. थैंक यू. बुशरा, एक और क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिलैप्स एंड रीएक्टिवेशन? दिस इज इन कॉन्टेक्स्ट विद हेपेटाइटिस बी वायरस. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिलैप्स एंड रीएक्टिवेशन, और both are the same things? जी बुशरा, unmute yourself and this term can be used interchangeably, लेकिन आमतौर पे reactivation का term जो है वो ज़्यादा यूज़ होती है as far as hepatitis B is concerned, क्योंकि अगर हम उसकी पैथोफिजियोलॉजी पढ़ें तो hepatitis B gets integrated with the host DNA and forms covalently closed complex DNA. तो इसलिए उसकी रीएक्टिवेशन होती है. जैसे अभी एक केस सिनेरियो था जिसमें पेशेंट को रिटुक्सिमैब मिल रही थी, तो जो केस था वो तो खैर सरफेस एंटीजन पॉजिटिव था, बट लेट्स से द पेशेंट इज हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन नेगेटिव और कोर पॉजिटिव है, तो उस पेशेंट में रीएक्टिवेशन ऑफ हेपेटाइटिस बी होगी. रीलैप्स आमतौर पे हम हेपेटाइटिस सी में इस्तेमाल करते हैं टर्म, जब पेशेंट का एंड ऑफ ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स आ गया लेकिन उसकी sustained virological response nahi aaya, which means that the virus was not completely suppressed. Reactivation is that it was suppressed at some point, but it has got reactivated because of certain other factors, jaise chemotherapy दी है या कोई immunosuppressants दी है. जी, थैंक यू. एक क्वेश्चन है चैट में, कैन वी यूज द रेशियो ऑफ प्लेटलेट टू स्प्लीन डायमीटर टू प्रिडिक्ट वेरिसेस instead of endoscopy? Zishan, do you like to comment on this? Again, this is one of the proposed जिसे कहते हैं ना मेथड्स के, जो कि एंडोस्कोपी का बर्डन कम करने के लिए, जहाँ पे एंडोस्कोपी की फैसिलिटीज लिमिटेड हो. जो डेटा जो फाइब्रोस्कैन के ऊपर है वो फिर भी बेहतर क्वालिटी का है,
दिस इज़ वन ऑफ द इन्वेस्टिगेशनल जिसे कहते हैं, अभी तक बहुत ज़्यादा जगहों से वैलिडेट नहीं हुआ, बट प्लेटलेट टू स्क्रीन रेशो और इज़ वन ऑफ द जिसे कहते हैं ना मेथड्स, but it has to be validated in our local population. Thank you. बुशरा, एक और क्वेश्चन पिछली दफा चैट में था कि व्हाट इज द rationale for indefinite treatment in E antigen negative disease? E antigen negative disease is being treated indefinitely. जी, हम क्यों कहते हैं कि ई एंटीजन नेगेटिव को indefinitely ट्रीट करें? That is because hepatitis B E antigen negative disease has a very low off treatment sustained virological response. एक तो वैसे ही up to 5 years तो लग ही जाते हैं in achieving the other endpoints of treatment, जिसमें ALT normalization है, hepatitis B DNA loss है, लेकिन after several years E antigen negative disease में आपको surface antigen loss नहीं मिलता. तो चूंकि surface antigen loss नहीं मिलता तो consolidated treatment का भी वक्त नहीं आता, anti-HBs भी नहीं, surface antigen loss होगा, anti-HBs appear होगा, फिर उसकी consolidated treatment होगी, लेकिन वो तो चूंकि वो end point of treatment achieve नहीं हो पाता, तो इसलिए usually ये कहा जाता है कि E antigen negative disease is treated for life. Because the end point is not usually attainable, it is a difficult to treat disease. So I just want to add on the comment के अल्ताफ साहब ने बड़ा अच्छा इसको elaborate किया था. अल्ताफ साहब आज हमारे साथ नहीं है कि जो E antigen positive और E antigen negative disease के अंदर off treatment response है, there is a significant difference के more than 2/3 of these patients actually relapse within 6 months of stopping the treatment. That's where the problem is कि E antigen negative patients में treatment आप बंद करते हैं तो very high risk of जो है ना relapse या reactivation जो है वो हम कहते हैं कि इसका DNA फिर positive आ जाता है. And apart from क्योंकि हम जब treatment बंद करने का decision ले रहे हैं तो वो तो एक separate issue है कि भाई कब decision लेना है, जो बुशरा बात कर रही थी कि end point of treatment, लेकिन जो off treatment relapse है that's very common and that's where we say कि जो E antigen में शायद लाइफ लॉन्ग ही देनी पड़ती है, क्योंकि जब आप बंद करेंगे तो विद इन 6 months DNA पॉजिटिव होगा. Thank you. I think we are at the end of today's session. Before I hand over back to Kiran, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि please keep sharing your experience and cases. Because we would love to hear from you. आपका केस जो भी है आप हमसे शेयर करें, व्हाट्सएप पे शेयर कर दें, उज़ैर को भेज दें, so that we ensure कि जो हमारी next case based discussion है, we add this case in that discussion. Okay, thank you very much. Kiran, over to you. So I would like to thank the spokes and our expert panels, Dr. Ikram, Dr. Zishan, and Dr. Bushra. And we are going to stick with our time according to the poll. Thank you, our chairman, Mr. Suhail Akhtar, our director, Dr. Asad Ali Chaudhry, Dr. Amna, our PAM lead, our coordinator Uzair, and IT Haris and Salman for their supports. Thanks for Ferozins Laboratories for unrestricted educational grant and Pakistan Society of Hepatology. See you all next time, inshallah. Uzair, you can call off the meeting. Thank you. Thank you very much, ma'am. Till next time, Allah Hafiz to all of you.